श्रीनगर दुनिया भर के उन 49 शहरों में से एक है जिन्हें सोमवार को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया। इस सूची में 246 शहर पहले से हैं। मुंबई और हैदराबाद के बाद इस सूची में शामिल होने वाला श्रीनगर तीसरा भारतीय शहर है। यहाँ संस्कृति और रचनात्मकता, हस्तशिल्प और लोक कलाओं, साहित्य, संगीत आदि में सतत शहरी विकास के लिए निवेश किया जाता है। इसी के बाद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद आजम मट्टू और एसएमसी कमिश्नर अतहर अमीन ने आज एक साझा पत्रकार वार्ता के दौरान कैसे श्रीनगर शहर को इस सूची में शामिल किया गया पर पूरी विस्तार से जानकारी दी। The reason for us to be here today is that we want to together, first of all, celebrate and commemorate a very historic milestone that the city of Srinagar has collectively attained yesterday, when we have been inscribed as one of the creative cities in the Creative City Network by UNESCO in the category of folk art and culture, folk art and craft. This has been a collective effort. पहले मैं आपको Creative Cities Network के बारे में थोड़ा बताऊं. It was established in 2004 to promote cooperation between various cities around the world which have certain unique cultural and artistic capabilities and are especially focusing and emphasizing on those. There are different categories in gastronomy, in heritage, as well as in arts and crafts, which we have qualified for. We are the only city in the country which has been included in the UNESCO Creative Cities Network. I want to congratulate everybody who has been involved in this. I remember how focused all of us were. I want to thank Principal Secretary R&B Shri Shailendra Kumar ji, Principal Secretary Industries Shri Ranjan Thakur ji, Commissioner Srinagar Municipal Corporation for his personal efforts in this, Mr. Athar Amir Khan Sahab, Director Industries Mr. Mahmood Ahmed Shah Sahab. I want to thank Convener Intac Kashmir Salim Beg Sahab and Chief Town Planner Iftikhar Hakim Sahab and the associated teams which made this possible. I remember we've tried once, I think it was 2018 and 19, and we did not succeed. We tried again and we alhamdulillah succeeded. This I want to just clarify that we did compete for this. We applied for this. We persevered for this. We convinced UNESCO that we deserve to be included amongst nearly 250 cities across the world in this prestigious list. मुझे याद है 2018 में पहली बार सलीम साहब मुझसे मिले और इनने मुझे बताया that we should apply to Creative Cities Network, and we did, but we didn't succeed that year. Or Srinagar is the hub of the handicraft industry. We will all take initiatives now. Now we have attained our inclusion into the Creative Cities Network. Our work starts now. We want to make our arts and crafts popular internationally. We want to incubate talent. We want to educate people about our arts and crafts. And an essential function of the Creative Cities Network is that there has to be cooperation between the 250 plus cities around the world. In the arts and crafts category, there are different cities around the world. We'll work with those cities. And I think, inshallah ta'ala, this is a milestone. This is one of the first milestones of this nature for Srinagar. We will attain further such milestones. Another such milestone, earlier this year was that our cleanliness rankings as per the Swachh Sarvekshan have gone in the top 40, top 30 in the country. I pray that we continue to work together for our city collectively. I want to congratulate the artisans and craftsmen of Srinagar city, every resident, proud resident of Srinagar. Before I
ask Athar Saab to explain the technical details of our inclusion in the Creative Cities network. जैसे मेयर साहब ने कहा, ये शहरी श्रीनगर के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, चाहे वो इफ्तिखार साहब हैं, महमूद साहब की टीम है, इंटैक की टीम है, या जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम है। काफ़ी सालों से ये जद्दोजहद चल रही थी एंड फाइनली वी हैव बीन एबल टू मेक इट टू द लिस्ट दिस ईयर। ये प्राउड अचीवमेंट है कलेक्टिवली पूरे शहर के लिए, सभी लोगों के लिए हु हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस। इसमें मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसका एक प्रोसेस क्या रहता है। किसी भी शहर का जो म्यूनसिपल बॉडी होता है वो एलिजिबल होती है इस नेटवर्क में जुड़ने के लिए, उसके लिए अप्लाई करने के लिए। एक डॉजियर बनाया जाता है, अपनी अपनी जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। इस जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, इसकी 7 कैटेगरीज़ हैं। उसमें एक आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, एक फिल्म है, एक गैस्ट्रोनॉमी है, इस तरह से एक में है, उस कैटेगरी के हिसाब से वो अप्लाई करते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए एक बेहतरीन एक डॉजियर की ज़रूरत होती है, जिस डॉजियर को तैयार करने के लिए सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स दैट वी हैव हियर, इंटैक की पूरी टीम, हैंडीक्राफ्ट्स की जो है महमूद साहब के साथ में जो हैंडीक्राफ्ट्स की टीम है, या इफ्तिखार साहब व्हेन ही वाज वर्किंग विथ JK एरा, तब से कंसेप्चुलाइज हुआ था। वर्ल्ड बैंक की टीम ने भी इसमें काफ़ी हद तक उस डॉजियर को कंसेप्चुलाइज उसको करने में मदद की है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट डॉजियर केप्ट ऑन गेटिंग बेटर, और उस फाइनली उस शेप में तैयार हो गया विच वाज एक्सेप्टेड बाय द यूनेस्को। सबसे पहले जो सिटी के मेयर होते हैं उनकी तरफ से इसमें एंडोर्समेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। इसके साथ साथ एक भारत सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहते हैं, दे हैव एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इनकू, इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विथ यूनेस्को। ये एक संस्था है, ये कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो कोऑर्डिनेट करता है यूनेस्को सेक्रेटेरिएट के साथ। सो फॉर्चुनेटली दिस ईयर जब श्रीनगर सिटी की एप्लीकेशन गई, इट वाज एंडोर्स्ड बाय इनको। इनफैक्ट 2 सिटीज़ का यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एंडोर्समेंट गया था। वन वाज श्रीनगर फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट और ग्वालियर फॉर म्यूज़िक। ये 2 सिटीज़ का नॉमिनेशन इंडिया से गया टू यूनेस्को सेक्रेटेरिएट, एंड यूनेस्को हैज़ एक्सेप्टेड ओनली श्रीनगर्स नॉमिनेशन फॉर इंक्लूजन इन दिस प्रेस्टिजियस लिस्ट। अब जो द एक्चुअल वर्क एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर दिस इंक्लूजन। जब इंक्लूजन के लिए कोई भी सिटी अप्लाई करती है, इट कमिट्स लॉट ऑफ थिंग्स टू इट। काफ़ी सारी कमिटमेंट की जाती है कि अगर हम क्राफ्ट्स एंड आर्ट की बात करते हैं या क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो क्रिएटिविटी को किस तरीके से शहर की डेवलपमेंट का एक सेंटर बनाया जाए। हाउ कैन क्रिएटिविटी बी मेड सेंट्रल टू द अर्बन डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी। श्रीनगर जहाँ का हमारा मेन जो इकोनॉमी देखें, इट्स नॉट एन इंडस्ट्रियल टाउन, इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन हैंडीक्राफ्ट्स, इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन दीज कल्चरल एस्पेक्ट्स। ये बाय डिफॉल्ट। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।